That's win number 2 for Karachi Kings as they have won their 23rd encounter against Lahore Qalandars in the Pakistan Super League Season 11 at Qazafi Stadium, Lahore. In what can be anticipated as a very crucial, I'd say, encounter, and it wasn't in no way was it a one-sided match. It was a match that went down to the last over, and at the end of the day, it was Karachi Kings who emerged superior, victorious, and won this match by 4 wickets. Well, to be honest, ये जो मैच हुआ है पूरा इसमें, and of course, before I go ahead and dive down into the controversy side of it, which by the way has been under a lot of scrutiny on social media since yesterday, Adam Zampa was awarded the player of the match for his scintillating 2 wickets at the expense of just 11 runs in 4 overs. And of course, this is where Karachi Kings won at the auction, and of course, they've selected the right squad, and ever since then, the induction of David Warner in Karachi Kings have not only incorporated in them an Aussie mindset, but it has also turned the tables around for Karachi Kings, who, by the way, hilariously, ironically, still hold the record of the most losses in the PSL history. That is 60 losses. Despite that, they have really managed to turn the tables around and, really pull up to be a very strong team this season. इस पे तो हमारी बात चलती रहेगी, लेकिन कल जो है सारा मैच गुजर गया, सब कुछ हो गया, बट आखिरी ओवर में जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उसके अलावा जो है ना बॉल टेम्परिंग की तो बातें हुई है कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा देयर इज अनदर थिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, व्हिच इज द डेथ ओवर क्राइसिस. डेथ ओवर के जो क्राइसिस हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हमारे जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कही जाते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि why do they not act as death over specialist? I mean, I'm sorry, there's no way you can excuse Haris Roof's performance over there. And to everyone that's saying that Lahore Qalandar lost yesterday because of the ball tampering controversy and all, I'm sorry, but that's not true. Lahore Qalandars lost because they just simply failed to incorporate proper game awareness. And Lahore Qalandars lost, and you only have Haris Roof to blame. And you could blame Shaheen Afridi a bit, but लेकिन हम शाहीन को इतना ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि शाहीन was exceptional with the ball yesterday. He bagged 4 विकेट्स, और वो वाले जो पूरे प्राइम में जो शाहीन अफरीदी थे वो हमें कल नजर आए लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए. और मुझे ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे कि जो वो एक स्ट्रीक है ना कराची किंग्स से जीतने की, वो शायद ब्रेक हो जाए और लाहौर कलंदर्स ये जो है मैच डोमिनेट करते हैं कराची किंग्स से. वैसे ही बहुत हाई स्टेक्स मैच था, एल क्लासिको कहा जाता है, मिनी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कहा जाता है, और कराची किंग्स कहीं से भी जो उनके रन चेज में ऐसा नहीं लगा था किसी भी एक पॉइंट पे कंफर्टेबली जीत जाएंगे. इवन लाहौर कलंदर्स भी जब बैटिंग कर रहे थे, इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन टू विन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट ऑन अ सर्फेस दैट वाजंट वेरी रिसेप्टिव एंड वेरी सपोर्टिव ऑफ बैटर्स. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फिर उसके बाद जिस तरह से 128 रन बनाए थे, probably one of the lowest totals in this season of PSL so far, और जो है इस one of the lowest totals पूरे PSL की हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी अभी तक जो है लाहौर कलंदर्स के हवाले से. तो इट्स फनी हाउ कि मोस्ट लॉसेस का रिकॉर्ड भी एक टीम के पास था और मोस्ट I'd say द लोएस्ट टोटल का रिकॉर्ड दूसरी टीम के पास था. तो ये सब. अब आते हैं उस बात पे जिस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है. अब यहाँ पे तो सब कह रहे हैं कि फखर जमान के साथ जो हुआ प्रॉबली वो शायद उनकी गलती नहीं थी, बॉल टेम्परिंग नहीं थी वो. देखिए, ये पहली बात तो ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते. Let's just leave it to the officials, to the people, to the technical people who actually know about this. Number 1. Number 2, not a lot of people know this, but this is not the first time that Fakhar Zaman has done this, by the way. And now this may seem shocking, but ILT20 में भी फखर जमान के साथ ऐसी इंसिडेंस हुई है कि जहाँ पे इस तरह से उन्होंने जो है ना बॉल को शाइन करने की कोशिश की थी, बट वो एक बॉल टेम्परिंग के उसके जोन में आता था, बट वो उस वक्त जो है ना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, उस वक्त किसी ने उसको कैच नहीं किया, पर इट वाज कॉट इन द PSL yesterday, कल के मैच पे. और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स पूरे ऑफिशियल्स की अब सिचुएशन ये है कि PCB ने लेवल 3 कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है PCB के रूल्स के अंडर. और इसके हवाले से देखिए, अगर आप एक दफा ये लेवल 3 की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करते हो तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 मैचेस जो हैं अब फाइन हो जाते हो. अगर दूसरी दफा करते हो तो इट्स प्रॉब्ली अबाउट अ मंथ, और तीसरी दफा करते हो सो यू गेट बैंड फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर, राइट. तो मिनिमम 2 से 3 मैच, मैक्सिमम 6 टेस्ट मैचेस तक की आपकी ये पाबंदी जो है, इसका पूरा एक जो टाइमलाइन है वो चलती है. अब फखर जमान के साथ ये कल हुआ, और मैं इसको अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं कहूंगी, ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक सिकंदर रजा की उनके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट दिस कंट्रोवर्सी, सो थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट लुकिंग गुड फॉर लाहौर कलंदर्स. फिर अगर हम
बात करें फ़खर जमान की जिस तरह से हुआ द इंटायर 20th ओवर फियास्को, उसके बाद फिर अंपायर ने आके रोक दिया मैच एंड शाहीन अफरीदी की पूरी एक जो है ना प्रॉबली पूरी डिस्कशन इस पे हुई और आर्ग्यूमेंट हुई और फिर ही नॉडेड हिज हेड इन डिसएग्रीमेंट एंड ही वाजंट वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन। और इवन जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन से पूछा गया तो शाहीन वाज क्लूलेस, शाहीन को बहुत नर्वस दिखाई दिए। रमीज वारिया सर ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि आई एम गोना गो एंड चेक द रूल्स और ये एक्चुअली हुआ क्या, आई विल गो एंड हैव अ लुक एट दिस। और अभी सिचुएशन ये है अपडेटेड कि उन पे फ़खर जमान को जो है पीसीबी ने ऑफ कोर्स फाइन कर दिया और ऑफ कोर्स उन पे पूरी एक उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, बट 48 आवर्स में ये चीज़ प्रॉपर कंसर्न वो प्रॉपर जो है ना कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि फ़खर जमान ने अभी इसको मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आई हैव नॉट डन बॉल टेम्परिंग, बट द थिंग कंफर्म थिंग इज दैट कि इट इज़ व्हाट इट इज़। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें काफ़ी लेयर्स होती हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये कि जब आप एक एथलीट होते हो ना, आप ग्राउंड में उतरते हो, टेक्निकलिटीज तो आपकी वैसी सॉलिड होनी चाहिए गेम की, आपको पता होना चाहिए कि आपने कब क्या करना है गेम के हवाले से। आउटसाइड द गेम भी आपको रूल्स पता होने चाहिए। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये बात मैं इसलिए नहीं कर रही कि फ़खर जमान के साथ ही पूरा फियास्को हुआ है कल, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज हसन अली वाज आल्सो द वन हु वाज फाइंड एट लेवल 1 कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच, और उनको भी फाइन कर दिया गया 10% ऑफ द मैच फी। वो सब उनके साथ हुआ, तो कराची की तरफ से भी हुआ, लाहौर की तरफ से भी हुआ। तो जब ये सब हुआ तो इट रेजेस क्वेश्चंस ऑन द प्रोफेशनलिज्म, और इससे आप प्लेयर्स से बढ़ के जो इफेक्ट हो रहे हैं ना वो आपकी लीग इफेक्ट हो रही है। लीग मैटर्स मोर देन एनीथिंग, लीग इज ग्रेटर देन ईच एंड एवरी प्लेयर आउट देयर। तो ये एक मोमेंट ऑफ कंसर्न है कि क्यों नहीं ये चीज़ बताई जाती, क्यों नहीं रीइटरेट किया जाता है इस बात पे कि जो रूल्स हैं एटलीस्ट उनको प्रॉपर पढ़ा जाए। इट इज़ द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट देयर टीम्स द प्लेयर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग देयर टीम दे डू नॉट रियली टेक दिस लाइटली, बिकॉज आप एक अगर एथलीट हो तो गेम के हवाले से आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी नॉलेज जो है ना वो इन चीज़ों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको इनके बारे में पता ही नहीं होगा कि चीज़ क्या होती है, जस्ट लाइक हाउ क्लूलेस शाहीन वाज यस्टरडे, इट वाज ऑनेस्टली वेरी एम्बैरेसिंग। तो फिर ये सिचुएशंस होंगी एंड इट इज नॉट अ वेरी अच्छा गुड सिचुएशन फॉर आइदर ऑफ द गेम। ये बात होगी कंट्रोवर्सी पे, मैंने पूरी बात कर दी। अब आते हैं एक बहुत एक ऐसा पॉइंट और उसके बाद आई एंड दिस वीडियो, क्योंकि कि जो बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना बात इस पे हो रही है वो चीज़ के क्राउड को अलाउ किया जा रहा है और क्राउड के बगैर पीएसएल खेला जा रहा है, एंड देन दो बिला वजह की कंपैरिजंस हो रही हैं पीएसएल आईपीएल में। वैसे तो आई डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि आई थॉट कि जो नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने देखी है सेकेंड डे ऑफ ईद पे, इट वॉज प्रिटी एविडेंट, इट वॉज प्रिटी कॉमन सेंस वाली बात थी ये। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस पे इतना ज्यादा फियास्को हो क्यों रहा है और क्यों इस पे इतनी ज्यादा बात हो जा रही है कि क्राउड को अलाउ करना चाहिए। मेरा सिंपल सा छोटा सा एक सवाल है इस पे, क्योंकि बहुत डिस्कशन हो रहा है, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि पीएसएल में क्राउड को अलाउ करना चाहिए था, पीएसएल क्राउड के बगैर नहीं खेलना चाहिए था, पहली बात तो आप ये बताएं। और जो लोग बिला वजह बाय द वे कंपैरिजन करें पीएसएल की आईपीएल की, इवन दो आपके अपने पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ही हैड एन इंटरव्यू विद वेस्ट एंड ड्यूरिंग जब लॉर्ड्स में उनका पूरा रोड शो हुआ था, उसके बाद इवन ही सेड कि देयर इज नो कंपैरिजन with anyone, PSL we own the originality of it। और होना यही चाहिए कि आप अपनी लीग की ओरिजिनलिटी को ओन करो। आपकी लीग इज इन अ लीग ऑफ इट्स ओन, योर लीग इज ओरिजिनल यूनिक, उसका कोई कंपैरिजन आईपीएल से बनता नहीं है पहली बात। एंड नोबडी वांटेड पीएसएल टू क्लैश विद आईपीएल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बात मैं बता दूं, जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं कि पीएसएल को आगे कर देना चाहिए था या पोस्टपोन कर देना चाहिए था। रियलिस्टिकली अगर आपने थोड़े से जाके उठा के क्रिकेटिंग स्केड्यूल देखा है ना तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं 15 या 20 अप्रैल से इंग्लैंड की पूरी क्रिकेटिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वेरी रिग्रेस। दे हैव वाइटैलिटी टी20 ब्लास्ट, फिर इंग्लैंड में आपके पास वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप है, एंड देन द 100 उनका सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट डोमेस्टिक लीग, तो इंग्लैंड का ये है। देन आपके पास अभी आपको पता है कि अगस्त में यूरो टी20 बेल्जियम में खेली जा रही है, वो लीग हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं। देन उसके बाद बिग बैश लीग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगी। सो आपके पास विंडो है ही नहीं। और फिर उसको भी आप छोड़ें, अगर हम अपनी नेशनल इंटरनेशनल विंडो देखें तो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज होम सीरीज स्केड्यूल थी अप्रैल में, जो कि ऑब्वियसली अब आगे जाएगी। तो आपके पास विंडो वैसे भी नहीं थी कि आप पीएसएल को आगे करते थे। सो इट वाज आइदर येस और नो, और आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप पीएसएल कैंसिल करें, क्योंकि जस्ट डजंट मेक सेंस। जब आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप क्राउड के बगैर पीएसएल करा दें बिहाइंड क्लोज्ड डोर, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट। ये एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था और आई थिंक होना चाहिए था। अब जो लोग इस चीज से डिसएग्री कर रहे हैं, मेरा उसमें सीधा सीधा सवाल है कि अभी आप मिडिल ईस्ट की सिचुएशन देखें, ये आई डोंट केयर कि आईपीएल क्या हो रहा है, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कभी पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर नहीं किया, क्योंकि कंपैरिजन बनता नहीं है। आईपीएल अपनी लीग है, पीएसएल अपनी लीग है, अब दोनों के पैसों में कंपेयर करना वो एक बेवकूफी वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात,
इंडिया के जो नेबर्स हैं वो ईरान नहीं है, इंडिया का नेबर अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया का जो है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिस जो ईरान से भी बॉर्डर मैच करती है, अफगानिस्तान भी मैच करती है, इंडिया से भी मैच करती है। तो मिडिल ईस्ट की जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें पाकिस्तान एक जो है ना सेंटर पे है, राइट। और पाकिस्तान ज़्यादा क्रूशल पोजिशन पे है एज कम्पेयर टू इंडिया, राइट। तो पहली बात जो ये पूरी सिचुएशन चल रही है ना, इसमें थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। फिर इकोनॉमी के हवाले से जितना मोहसिन नकवी ने उनके हवाले से बताया कि पेट्रोल के वो जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसके हवाले से सब कुछ हो रहा है। तो इंडिया हाफ उस सेंसिटिव पोजीशन में भी नहीं है जिसमें हम है। मुझे नहीं पता लोगों को इसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा। और जो लोग ये बात करें कि क्राउड रहने चाहिए, तो मेरा सिंपल सा एक सवाल है टू एवरी जर्नलिस्ट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, टू एवरी फैन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, अगर अल्लाह ना करे कुछ साउथ चली जाती चीजें या कुछ अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता पीएसएल के दौरान क्राउड्स की मौजूदगी में, तो क्या आप लोग इस चीज की जिम्मेदारी लेते? सिंपल सा सवाल है। अगर यस तो फिर एक सिंपली, और अगर नो तो फिर आई डोंट थिंक आपको ये रेकमेंड करना चाहिए। और वैसे भी अगर आप गौर से सेकेंड ऑफ ईद पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें मोहसिन नकवी साहब की, तो उन्होंने बात क्लियरली कही थी कि एज सून एज द सिचुएशन गेट्स नॉर्मलाइज्ड, बी इट 10 days, बी इट 15 days, द क्राउड वुड बी अलाउड बैक इन द स्टेडियम्स। आई नो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट चीजें दुनिया भर में नॉर्मल नहीं है, अभी कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं चल रहे। इसमें लीग को प्रॉपरली फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कराना ही पीसीबी की, पीएसएल मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी विन है, राइट। तो अपनी लीग को ओन करें और खुदारा अपनी लीग के ऊपर जो है ना वो करें बजाय इसके काबिल। फिर उसके बाद एक और क्रिटिसिज्म इस पे हो रहा है कि कराची को क्यों मैचेस मिले, कराची के अलावा कहीं और मूव कर सकते थे। देखें, अगर आपने मोहसिन नकवी साहब के, अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ अटेंटिवली डिड यू लिसन टू मोहसिन नकवी's प्रेसर। बिकॉज मोहसिन नकवी साहब ने इस चीज को भी केटर किया था कि कराची मैच शिफ्ट करने का रीजन ये था कि अब क्राउड का यहाँ पे इक्वेशन है ही नहीं। तो जो लोग यहाँ पे बिला वजह की चीज करें ना कि कराची में क्यों मैच शिफ्ट किया बिकॉज क्राउड तो वहां आता नहीं, तो क्राउड तो अब इक्वेशन से ही बाहर हो गया ना, राइट। तो क्राउड का आना ना आना इज नॉट इवन इन दी इक्वेशन एनीमोर। इट्स जस्ट अबाउट कि पीएसएल सक्सेसफुली कराना है, उसके लिए लाहौर एंड कराची वर द टू सेफेस्ट स्टेडियम्स आउट देयर, तो उस वजह से ये डिसीजन